Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, how are you? During this meeting, I'm going to discuss about how quality, innovation, and customer responsiveness create a competitive advantage for the company. This is part of a chapter number 4. So let me share first about the quality. So when we talk about the quality, so the quality can be thought of two dimensions. One is quality as a reliability, and another is the quality as an excellence. And superior quality provides a company with two advantages. First, a strong reputation for quality allows the company to differentiate its product from its rivals and therefore create a more value in the eyes of the customer and giving the company the option of charging a premium price for its product. The first advantage of the quality is definitely differentiation of the product from the rivals. And second advantage of superior quality is the eliminating defects or errors from the production process, and that reduces waste and increases efficiency, lower the cost structure of the company and increases its profitability. So two advantages of improving and having a superior quality. One is in the case of the differentiation, and another is when your product have a less errors or that eliminate the defect, and that will also lower the cost structure of the company as well, and that increase the profitability. So let's talk about quality as a reliability and quality as an excellence one by one. First of all, achieving superior reliability, which is the one dimension of the quality as a reliability. And the main tool which the manager now uses to increase the reliability of the product offering is the Six Sigma. And the Six Sigma is an improvement methodology which has been used in the developed world and also in some developing countries as well. And the Six Sigma methodology is actually a direct descendant of the total quality management. And you have heard about this word total quality and management. Total means it encompasses the whole organization. Quality is the quality in the product and the quality in the services, and how are you managing that whole processes. So total quality management is a philosophy that was widely adopted by Japanese companies and then by the American companies during the 1980s and early 1990s. And the TQM concept was developed by the number of American management consultants, including W. Edward Deming, Joseph Yuan, and A.V. Feigenbaum, I think I mean pronunciation check kar raha hu. And the philosophy under the total quality management is articulated by the Deming. Deming के इन concept को पहले Japanese firm ने adopt किया और Japanese firm जब successful होगी इस मामले के अंदर तो फिर American firms ने भी इसको adopt किया. Deming ने 5 steps, following 5 steps उसने identified किए. There are 5 factors of the total quality management. The improved quality means that cost decreases because of less rework, fewer mistakes, fewer delays, and better use of टाइम एंड मटेरियल. ये क्वालिटी का एक फायदा है. क्वालिटी का दूसरा फायदा ये है कि इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. क्वालिटी का तीसरा फायदा ये है कि बेटर क्वालिटी लीड्स टू द हायर मार्केट शेयर, अलाउइंग द कंपनी टू रेज द प्राइसेस. एंड चौथा फायदा उसने बताया हायर प्राइसेस इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, अलाउइंग द कंपनी टू स्टे इन द बिजनेस. और उसकी वजह से कंपनी जो है जब बिजनेस के अंदर रहती है तो ज़्यादा जॉब्स भी प्रोड्यूस करती हैं. Deming identified a number of steps that could be part of any quality management program. First is management should embrace the philosophy that mistakes, defects, and poor quality materials are not acceptable and should be eliminated. Second is quality of supervision should be improved by allowing more time for supervision to work with employees and training employees in appropriate skill for the job. And management should create an environment in which employees will not fear reporting problems or recommending improvements. Or fourth is work standards should not be only defined as a numbers or quotas, but should also include some notion of quality to improve the production of the defect-free output. Defect-free output जो है सिर्फ number और quotas के ऊपर ना हो बल्कि defect-free products जो है वो produce हो. और everyone in the company should commit to achieving better quality. तमाम के तमाम लोग. और management is responsible
कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए नए स्किल्स के हवाले से, ताकि वो जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं क्वालिटी के हवाले से उनको एम्ब्रेस करें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वेस्टर्न बिजनेसेस वर ब्लाइंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट concept until Japan rose to the top rank of the economic power in the 1980s. और फिर वेस्टर्न पावर्स को भी उन्होंने भी एम्फसाइज किया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और फिर बड़े तेजी के साथ ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुए। ओके जी, इम्प्लीमेंटिंग रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजीज, आप किस तरीके से क्या क्या रोल मुख्तलिफ फंक्शन इसके हवाले से प्ले करते हैं। बहरहाल बहुत सारी कंपनी जिन्होंने रिलायबिलिटी एज अ क्वालिटी को जो इम्प्लीमेंट किया उसके अंदर काफ़ी पैरामीटर्स को वो देखते हैं। और इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इज एक्चुअली अ क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस, यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मिलकर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। और इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स क्लोज कोऑपरेशन अमंग ऑल फंक्शंस इन द परसूट ऑफ द कॉमन गोल ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड इट इज़ अ प्रोसेस दैट वर्क अक्रॉस मैनी फंक्शंस। तो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मटेरियल, R&D, सारे मिलकर काम करते हैं, तभी एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अब जो मुख्तलिफ फंक्शन जो रोल प्ले करते हैं उनको हम 1 by 1 देख लेते हैं। टेबल 4.2 जो है इन्हीं रोल्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सीनियर मैनेजर्स एग्री टू द क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड कम्युनिकेट इट्स इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, इफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज टू बी सक्सेसफुल, सो इंडिविजुअल मस्ट बी आइडेंटिफाइड टू लीड द प्रोग्राम। कौन लोग इसको लीड करेंगे, इनको आइडेंटिफिकेशन की जाए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट methodologies preach the need to identify defects that arise from processes and trace them to their source. Find out what caused the defects and make corrections so that they do not occur. तो ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से वो कॉज वो डिफेक्ट आ रहे हैं, उसको रूट को आइडेंटिफाई करना और रूट से चीज को ठीक कर देना, ये क्वालिटी की रिलायबिलिटी, क्वालिटी द रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। और a key to any quality improvement program is to create a metric that measure the quality, जिसके अगेंस्ट आप measure करेंगे। And once a metric has been devised, the next step is to challenging quality goal and create incentive for reaching it. The shop floor employees can be a major source of ideas for improving quality. So these employees must participate in the quality improvement programs or to decrease defect, because a major source of poor quality finished good is a poor quality component. So company must work with its supplier to improve the quality of the part that employs. तो कुछ इंपेरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, आगे तो रोल्स हैं इसके अंदर बताए भी गए हैं, लेकिन आप कुछ चीजें जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के हवाले से देख रहे हैं। सप्लायर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का मिल रहा है। अगर रॉ मटेरियल ही पूरी क्वालिटी का मिल रहा है तो फिर उसकी रिलायबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे प्रोडक्ट के हवाले से। और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसके अंदर फ्यूअर कॉम्पोनेंट्स हों, ताकि किसी भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और दूसरा ये है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो बनाए जाए उसके अंदर सब्सटेंशियल कोऑपरेशन को इंश्योर किया जाए थ्रू आउट द कंपनी। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ टॉप इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, टॉप मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बन जाए। और भी आपको डिटेल में अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ फंक्शन के हवाले से उन्होंने ये बताया कि क्या क्या फंक्शन जो है वो क्या क्या रोल जो है इस हवाले से प्ले कर सकते हैं। मतलब देखें, इनकरेज कॉपरेशन अमंग द फंक्शन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आ गया, प्रोडक्शन का शॉर्ट एंड प्रोडक्शन रन आ गई, मार्केटिंग, प्रोवाइड कस्टमर फीडबैक ऑन क्वालिटी, ये सारी चीजें इस हवाले से आ गई। अब दूसरी जो डायमेंशन जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, इंप्रूविंग क्वालिटी एज अ एक्सीलेंस। सो अ प्रोडक्ट इज comprised of different attributes and reliability is just one attribute, and but an important one. And products can also be differentiated by attributes that included form, features, performance, durability, reliability, style. तो रिलायबिलिटी तो एक डायमेंशन है, लेकिन और भी है। फॉर्म किस तरह की है, किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस है, कितनी देर तक वो प्रोडक्ट चलती है, क्या स्टाइल है उसका। तो जो कंपनी कैन क्रिएट क्वालिटी एज एक्सीलेंस बाय एम्फसाइजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द सर्विस associated with the product, such as ordering ease, prompt delivery, easy installation, and the availability of customer training and consulting and maintenance service। ये सारी बातें भी क्वालिटी के
एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स वो ऑफर करती हैं। जिस तरह आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो पोर्शे की गाड़ी आप खरीदने के लिए जाते हैं तो एक स्टाइल है, एक एक्सीलेंस, स्टाइल एज ए क्वालिटी, फीचर एज ए क्वालिटी की तरफ लेके जाते हैं। फिर अगर कुछ इस तरह वॉल्वो की गाड़ी है तो वो उसके हवाले से वो उसकी सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो कंपनी जो होती है मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कई एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा हाईलाइट भी करती हैं। तो कंपनी की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी प्रोडक्ट के हवाले से वो उसकी क्वालिटी एज एन एक्सीलेंस को बताते हैं। इस हवाले से रोलेक्स की वॉच है, एक्सपेंसिव वॉचेस हैं, लेकिन वो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके स्टाइल के हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा बहुत टाइमेक्स की वॉचेस हैं, स्पोर्ट्स वॉचेस हैं, वो उसके डिफरेंट डायमेंशन को, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करते हैं। तो बहरहाल एक प्रोडक्ट को जब आप उसको समझते हैं कि बड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन जो कि वो ऑफर करती हैं वो सुपीरियर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दी राइवल्स। तो आप देखें इसमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं तो वो फॉर्म, फीचर, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टाइल हैं। फिर सर्विस एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डरिंग ईज, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, कस्टमर काउंसलिंग, मेंटेनेंस, इंटरफेयर। फिर कुछ एसोसिएटेड पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं उस कंपनी के हवाले से, उनके एम्प्लॉयज़ के हवाले से, कॉम्पिटेंस, कर्टिसी, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कम्युनिकेशन। तो बहरहाल एक अचीविंग अ परसेप्शन ऑफ हाई क्वालिटी फॉर द कंपनी, so on any of these attributes requires specific action by the managers. So it is important for the managers to collect marketing intelligence indicating which of these attributes are most important to the customer. हाई क्वालिटी परसेप्शन के लिए उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि उनको पता चले किन एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा काम किया जाए। अब एप्पल आईफोन्स हैं या सैमसंग की गैलेक्सी फ़ोन्स हैं, किन एट्रीब्यूट्स को जो है कस्टमर जो हैं वो इंपॉर्टेंस देते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं, तो उसके मुताबिक उनको अपनी प्रोडक्ट को उन एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करना चाहिए। अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की को उन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर क्वालिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि कस्टमर रिस्पॉन्सिव है। Once the company had identified the attributes that are important to customer, it need to design its product and the associated services in such a way that those attributes are embodied in the product. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पोर्शे गाड़ी की, उसकी आप स्टाइल है, उसके क्वालिटी, स्टाइल एज अ क्वालिटी, फिर उसके फीचर एज अ क्वालिटी, उसके जो उनके अंदर फीचर हैं वो उनकी क्वालिटी को आइडेंटिफिकेशन करना। फिर इसी तरह अगर टोयोटा गाड़ी है तो टोयोटा गाड़ी जब एडवर्टाइज करती हैं तो वो उनके डिफरेंट ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल वैल्यू, उन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाता है। तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से, अगर आप बाइक भी खरीदने के लिए जाते हैं तो बाइक के जिस तरह आप होंडा CD70 इकोनॉमी एफिशिएंट होने की वजह से, ये नहीं कि बाकी सारे एट्रीब्यूट्स नहीं है, बाकी भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है CD70 को एज कंपेरिजन टू अगर आप CG125 देखें उसके हवाले से दिक्कत है। ओके जी, and then design those products so that attributes are embodied in the product। ये मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। और then the company then they decide significant attribute to promote and how best to position them in the mind of consumer। तमाम attributes को कंपनी हाईलाइट नहीं करती, कुछ attributes को ज़्यादा हाईलाइट करती है, कंज्यूमर के माइंड्स के अंदर ज़्यादा प्लेस करती है ताकि कंज्यूमर जिन एट्रीब्यूट्स को समझते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को मार्केटिंग कैंपेन के अंदर हाईलाइट किया जाए ताकि वो उन चीज़ों को वहाँ से खरीद लें। And then recognize that competition is not stationary, but instead continuously improvement in the product attributes, and that basically new product attribute आते रहें। इस तरह आप देखते हैं मोबाइल फोनों के नए नए मॉडल आते हैं तो उसके अंदर नए नए एट्रीब्यूट होते हैं, वो इसी को देखते हुए कि कंपटीशन कॉपी कर लेता है उन एट्रीब्यूट्स को, तो फिर वो एट्रीब्यूट्स जो हैं कंपैरेटिव एडवांटेज कंपनी के लिए अचीव नहीं कर पाते। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कि वो एक सुपीरियर क्वालिटी कंपनी के लिए प्रोड्यूस करें, कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड करते रहें क्वालिटी के मामलात को, ताकि उन क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स को कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर और सर्विस के अंदर, दोनों के अंदर एट्रीब्यूट इनकॉर्पोरेट किए जा सके। ये उतना इंपॉर्टेंट जितना सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट सर्विस के लिए। आप कहीं पे जाते हैं, कितनी देर में वो आपको सर्व करते हैं, कितने रेस्टोरेंट में गए हैं, कितनी देर में वो ऑर्डर आ जाता है, क्या क्वालिटी है खाने की, किस तरह वो आपसे बिहेव करते हैं, सारी बातें उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर आती हैं। किसी बैंक में चले जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है क्या, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, किस तरह आपकी कंप्लेंट को वो एड्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटी के अंडर आ जाती हैं।
कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर भी हम इसको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से बात कर रहा हूँ। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर कंपनी सुपीरियर जो डिलीवरी टाइम है वो चीज़ें उनकी कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में आती है, बट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विस के अंदर भी काउंट करते हैं। क्वालिटी किस टाइप की वो, मतलब अगर आप रोलेक्स वॉचेज हैं जो कि एक्सपेंसिव वॉचेज हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी होगी और क्वालिटी ऑफ जो सेल्समैन होगी वो भी एक फैक्टर काउंट करता है ओवरऑल क्वालिटी की परसेप्शन को स्टैब्लिश करने के हवाले से। क्वालिटी के हवाले से इतनी ही बात थी, और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा सुपीरियर इनोवेशन की।